Hello class 10. So today we are going to talk about nutrition in human beings. You know, the alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus, and you might have seen the figure at page number 99 in your book where human alimentary canal is given. The food we eat has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. Since the lining of the canal is very soft and the food is also wetted to make the passage smooth, when we eat something, we like our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva is secreted by our salivary glands. Another aspect of the food is we ingest its complex nature. If it is to be absorbed from alimentary canal, it has to be broken into simpler molecules, and this is done with the help of biological catalyst called enzymes. You know what are enzymes? These are biological bioenzymes बोलते हैं, biocatalyst भी बोलते हैं इसको. Actually, saliva contains enzymes called salivary amylase, and that breaks down the starch molecules, which is a complex molecule, and gives simple sugars. The food is mixed thoroughly with saliva and is moved around in the mouth while chewing by the muscular tongue. And in this way, the intake of food is done through the mouth. Chewing and grinding of food is done with the teeth. Then food is rolled and tasted with the tongue and swallowed, and it is pushed down in the esophagus, where salivary glands secreted by saliva, this is mucus, ये इसको मुंह में ही क्या करता है, स्टार्च जो है, स्टार्च आप जानते हैं, ये स्टार्च जो है वो शुगर सैकराइड्स है जो प्लांट्स में बनता है, वहाँ एंड प्रोडक्ट होता है ये. अब वो चूँकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और वो हमारे बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सेलेवरी अमाइलेज सिंपल शुगर में चेंज कर देता है. नाउ इट बिकम्स वेरी मच डाइजेस्टेबल या वेरी मच कैपेबल ऑफ आवर बॉडी, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत लायक हो जाता है कि अब ये इसको डाइजेस्ट कर सकता है. तो स्टार्च कॉम्प्लेक्स होता है और सिंपल शुगर में ये सिलेवरी अमाइलेज इसको चेंज कर देता है, सो दैट आवर बॉडी कैन डाइजेस्ट इट नाउ. तो ये होता है, यहाँ पर काम होता है. उसके बाद इसोफिगस में जब फूड आता है तब क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स होते हैं, उसके कारण वो बोलस जो होता है, खाना का जो पूरा लुकमा होता है, वो हमारे इसोफेगस से वो पास करके नीचे जाता है. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part of the digestive system. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. This is what the peristaltic movement that we were talking about. From the mouth, the food is taken to the stomach through a food pipe called esophagus. The stomach is a large organ which expands when food enters it. तो कहते हैं हम लोग को ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए. मालूम क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा खाना खाएंगे ना, पेट एक ब्लैडर की तरह से है, वो ब्लैडर उतना ही फूलता जाएगा, है ना. खाना और पानी ये सब बराबर मात्रा में, पेट का 3 हिस्सा होता है, 3 हिस्सों में एक हिस्सा खाना खाना चाहिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ना चाहिए. हमारे पेट में तीनों चीज़ के लिए जगह होना चाहिए. अगर हम तीनों हिस्सों को खाने से भर देंगे तो जानते हैं फिर बॉडी के जितने डिजीज़ेज़ हैं उनका सबसे मेन कारण है अपना पेट. अगर इस चीज़ को आपने संभाल के रख लिया ना, तो आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं इस बात की ये नहीं कहता कि अब इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जो इनबिल्ट डिजीज़ होते हैं उनका मेन कारण है पेट. पेट में हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो दबा के खा लेते हैं,
इस बात का ख्याल ही नहीं करते कि भैया ये जो है पेट ये 3 चीज़ों के लिए है और हम एक ही चीज़ से भर रहे हैं इसको, तो ये कहीं से भी फिजिबल नहीं है। देखिए स्टमक के अंदर हमारे पास ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3 चीज़ें सिक्रीट करती हैं। क्या क्या? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। अब आपको इस तीनों चीज़ का फंक्शन समझना है। The stomach is a large organ which expands when food enters it. The muscular wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. ये जो डाइजेस्टिव जूस है, यही गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, लीवर देता है बहुत सारे जूस को। इसमें जो गैस्ट्रिक जूस है, पहला है पेप्सिन। इसका काम क्या होता है? ये प्रोटीन को तोड़ते हैं। पेप्सिन एक बायोलॉजिकल एंजाइम है, बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं इसको। इसका काम क्या है कि प्रोटीन को तोड़े। अब जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें से प्रोटीन को चुन के ये क्या करता है, तोड़ने लगता है। अब प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बनाएगा, वो फिर टिश्यू वगैरह बनाता है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि उस पूरे फूड का जो सोल्यूशन है उसके मीडियम को एसिडिक रखता है। आप देखते होइएगा कभी कभी होता क्या है कि आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि यार सीने में जलन टाइप से हो रही है, लगता है जैसे खाना पचा नहीं है, एसिडिटी होती है ना, बहुत जल रहा होता है एकदम से। फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी एंटासिड लेते हैं, बेसिक सब्सटेंस, ताकि उसको न्यूट्रलाइज करें, इनो वगैरह है ना, लेते हैं और फिर वो तो ये एसिडिक मीडियम इसलिए करता है कि जो जर्म्स हैं उनको ये मार सके। जो कुछ भी हम खाते हैं उसके साथ जो जर्म्स गया है उसको ये मार सके। और एसिड उस फूड मॉलिक्यूल्स वगैरह को तोड़ने में भी काम आता है। भाई एसिड है, किसी को भी तोड़ फाड़ के ख़राब कर दे। म्यूकस इम्पॉर्टेंट है। अब जब आप समझिए कि जब खाना एसिडिक है और कहाँ पर है, पेट के अंदर, तो पेट की जो वॉल है, लाइनिंग है पूरी, वो भी तो एसिड की चपेट में आ जाएगी, तो पूरा जला के रख देगा। तो ये म्यूकस वहाँ पर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक के उस पूरे इनर लाइनिंग को। किससे? ये एसिडिक मीडियम से, एसिड के किसी भी तरह के एक्शन से ये म्यूकस बचा के रखता है। अब आप पढ़िए, इसलिए आप अपने बुक के लाइन को पढ़िएगा तो आपको मिलेगा वहाँ पर। These digestion functions are taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid, protein digestive enzymes called pepsin and mucus. अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड creates acidic medium which facilitate the action of enzyme pepsin. What other function do you think is served by the acid? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition. ठीक है, अब आइए, we often have heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? हमने आपको पहले ही बता दिया है ना। So the exit of the food from the stomach is regulated by sphincter muscle stomach. इसको ना स्फिंक्टर जंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जब आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा तब आप देखिएगा, बुक के अंदर है, आप यहाँ पर देखिए, एक जंक्शन है जहाँ पर ऊपर से स्टमक से एक नली आ रही है जहाँ से फूड आएगा। इधर गॉल ब्लैडर का भी नली वहीं पे खुलता है, लीवर का नली वहीं पे खुलता है, पैंक्रियाज का नली वहीं पे खुलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का नली वहीं से शुरू होता है। तो ये एक तरह का जंक्शन है, कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। सीबीडी ऑपरेशन वगैरह में आप सुनते होइएगा, सीबीडी को काटा है, सीबीडी को ऐसा किया, सीबीडी में ये पाया गया है, पत्थर है, ये है, वो है। सीबीडी होता है कॉमन बाइल डक्ट, यानी ये ऐसा डक्ट है, ऐसा जंक्चर है यहाँ पर कि सारे ऑर्गन के, लगभग ऑर्गन के जो पाइप है उनकी ओपनिंग यहीं पे होती है। स्टमक खुल रहा है उधर से, पैंक्रिया खुल रहा है नीचे से, इधर से लीवर खुल रहा है बाएं तरफ से, उसके ऊपर से गॉल ब्लैडर खुल रहा है
है ना, और फिर वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक जंक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर मसल या स्फिंक्टर जंक्शन भी कहते हैं। इट रिलीजेज इन इट स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये खुल करके सारा जूस वगैरह मटेरियल, उधर से फूड, इधर से गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रिया की तरफ से पैंक्रियाटिक जूस, सब ले करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ये कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग, इसकी कॉइलिंग भी बड़ी लंबी तगड़ी होती है ना। The length of the small intestine differ in various animals depending upon the food they eat. Herbivores eating grass need a long small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have shorter small intestine. आप जानते हैं मीट जल्दी डाइजेस्टेबल होता है, ज़्यादा प्रोटीन इसके अंदर होता है, बुक में लिख रहा है, इसलिए मीट खाने वाले लोग तगड़े होते हैं, है ना। लेकिन प्लांट्स जो ग्रास वगैरह खाते हैं उनको डाइजेस्ट होने में समय लगता है, इसलिए इनके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़े लंबे होते हैं, काफ़ी समय लगते हैं डाइजेशन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वेयर डज द डाइजेशन कंप्लीट? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, कहाँ पर डाइजेशन ख़त्म होता है? तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब ये इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स है वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में चेंज होगा, फैट्स है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज होगा, और प्रोटीन वो टूट के अमाइनो एसिड्स बनते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विलाई होता है, यानी जो आंत होती है उसके अंदर में आप देखिएगा हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो एक्चुअल में सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं ताकि ज़्यादा एरिया मिल सके और सब जगह न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो सके। विलाई जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, ठीक है। तो ये पार्ट भी आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। It received the secretion of the liver, pancreas. For this purpose, the food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to take action. ठीक है, तो बाइल जूस जो लीवर से होकर के आती है, जो फैट पर भी वर्क करता है, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एग्जाम टू एक्ट ऑन देम। तो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, इनको इनकी जो एसिडिक नेचर है इसको अल्कलाइन करने में मदद करती है। एमल्सिफाइंग एक्शन होती है सॉप की तरह से, जो डर्ट पे वर्क करता है। उसी तरह से चैप्टर 4 में आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे इसको, चैप्टर 4 यानी सेकंड टर्म में, केमिस्ट्री का चौथा और आखिरी चैप्टर है ये, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। Pancreas secretes pancreatic juice which contain enzymes like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fats. The wall of the small intestine contains glands which secrete intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the protein into amino acids, complex carbohydrate into glucose, and fats into fatty acids and glycerol. तो ये हमने आपको पहले ही बताया। डाइजेस्टेड फूड यहाँ से अब जो है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन पे जाते हैं, वहाँ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हमने विलाई आपको बताया, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देती है एब्जॉर्प्शन के लिए, और यहाँ ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इनको मिलना है, इसलिए ब्लड यहाँ पहले से पहुँचे हुए होते हैं। एनर्जी चाहिए बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ करने के लिए, तो ये यहाँ पहुँचे हुए होते हैं। और यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सिक्रीशन को रिसीव करते हैं। लीवर बाइल देता है, बाइल के अंदर लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो इमल्सिफाई होते हैं और स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बनते हैं। पैंक्रियाज क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस देते हैं, जिसमें पहला ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है, और दूसरा लाइपेज है जो फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में ये फूड चला जाता है जहाँ पर एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होता है और रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो है रिमूव हो जाते हैं वाया एनस, जिसको हम एक्सक्रीशन में देखेंगे, है ना। तो ये जो फिगर है वो आप देखिए, जो आपके बुक में दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर फिर से
दिखाया है। माउथ है, टंग है, इसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम, एनस। फिर इस तरफ आइए तो आप देखिए प्रोटेड ग्लैंड्स है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, फेरिंग्स है, स्टमक है, स्प्लीन है, पेंक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, अपेंडिक्स, एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है। आप इंटरनल क्वेश्चन पेज नंबर 101 पर है वो करेंगे, है ना। और ये सब करने के बाद आप हमको कल 7 to 9 में इसका आंसर भेज देंगे, हम इसको चेक कर देंगे। उसके बाद इसका नोट्स बनाएंगे, जितने फिगर्स हैं उस फिगर को बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।